اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین نیوز کے اسٹوڈیو میں آپ کا ہوسٹ یاسین لک۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے معروف ماہر معاشیات اکانومسٹ ہیں۔ عرصہ دراز سے پاکستان کے مختلف ادارے بھی چلا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، اور گورنمنٹ کے اہم عہدوں پر فائز ہو کر انہوں نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں، ہمارے ڈمی میوزیم سے آئے ہیں مشتاق ڈار صاحب۔ مشتاق ڈار صاحب، کیا حال ہیں؟ جی اللہ کی بڑی رحمت، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی بالکل بڑی کرم نوازی، آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کا جی اللہ پاک صحیح کام چل رہا ہے؟ جی بہت صحیح چل رہا ہے۔ یہ بتائیں ڈار صاحب، آپ کو میاں صاحب نے اسپیشلی طور پہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آتے ساتھ ہی آپ کو بھیجا، اسپیشل چارٹر طیارہ آپ کو لینے گیا، جی آپ آئے، کس مقصد کے لیے انہوں نے آپ کو پاکستان بھیجا؟ ہاں، ساری دنیا کو پتہ ہے بھئی مجھے کس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، کہ جا کر مہنگائی کو کنٹرول کریں، اچھا ڈالر کو کنٹرول کریں، جی جو یہ معاشی جو ہماری یہاں مجبوریاں اور یہ مسائل چل رہے تھے پاکستان میں، جی تو اس کو آ کے ہم نے کنٹرول کرنا تھا۔ کہاں تھا ڈالر؟ کہاں تھا ڈالر 160-165 کا تھا، آپ نے اب 300 کا کر دیا ہے۔ کچھ نہ کچھ کیا ہے نا جی، ڈالر گیا کامیابی پر۔ اور ڈالر کو کامیاب کرنے آئے تھے یا روپے کو کامیاب کرنے آئے تھے؟ روپیہ بھی تو اسی طریقے سے کامیاب ہو گیا نا، جہاں ڈالر کی ڈسکس ہوتی ہے وہاں روپے کی تو ڈسکس ہوتی ہے نا۔ ہمارا روپیہ بھی تو کہیں نہ کہیں جا ہی رہا ہے نا۔ روپے کو تو ڈاؤن فال میں ڈال دیا نا، مقصد روپے کو آپ نے مستحکم کرنا تھا، اس کی ویلیو بڑھانی تھی، اس کو اوپر لے کے جانا تھا، آپ تو جو ہے نا ڈالر کی پروموشن پر لگ گئے۔ بھائی روپیہ اگر ڈال فون میں گیا ہے تو ڈالر کہاں گیا ہے؟ ڈالر آپ ہوا ہے، جی روپیہ ہمارا ڈال فون میں چلا گیا جی بالکل ایسی ہے نا، جیسے ہماری ڈال فون بھی چل رہی ہے نا۔ اچھا یہ بتائیں، میاں صاحب نے آپ کو معیشت کنٹرول کرنے کے لیے ٹاسک دیا، جی آپ سینکڑوں مقدمات میں، نیب کے، اینٹی کرپشن کے، ایف آئی اے کے سینکڑوں مقدمات میں آپ اشتہاری تھے۔ وہ کون سا فارمولہ لگایا ہے جو ایک چارٹر طیارہ پاکستانی کے خرچے پر آپ کو لینے گیا ہے، لے کے آیا اور سیدھے آپ کسی کورٹ میں پیش نہیں ہوئے، کہیں ضمانت نہیں کرائی، کوئی مچلکے نہیں دیے، کسی قسم کی کوئی ہدایت نہیں، سیدھے سیٹ پہ بیٹھے اور آپ نے اپنی وزارت سنبھالنا شروع کر دی؟ وہ کیا گر کیا ہے آپ کے پاس؟ یاسین صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب میں یہاں سے گیا تھا تو میں اس وقت وزیر خزانہ تھا، جی بالکل، تو میں تو چھٹی پہ گیا ہوا تھا۔ جیسے جہاز وہاں سے طیارہ اڑا ہے تو ہماری دفعہ بھی اڑ گئی، ہمارے جرم بھی اڑ گئے، ہر چیز اڑ گئی، آگے میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا، پھر وزیر خزانہ بن گیا۔ اچھا، آپ چوریاں کریں، آپ ملک کا پیسہ لوٹیں، اربوں میں بلکہ خربوں میں لوٹیں، تو آپ کو چارٹر طیارہ لینے جائے؟ جو ملک کے چور ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، جو جیلوں میں پڑے، ان کے ساتھ تو پھر کیا کریں؟ ان کو تو اس سے بڑے چارٹر طیارے میں ہمیں دنیا کی سیر کروانی چاہیے۔ دیکھیں جی، وہ پکڑے گئے ہیں، میں پکڑا نہیں، میرے پیچھے میاں صاحب کی سپورٹ ہے، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے میں کرتا ہوں۔ اچھا، میاں صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ جا کے پاکستان کی معیشت کا دیوالیہ نکال لیں؟ نہیں، دیوالیے کی بات نہیں، ان کے سنبھالیں، ان کو دیوالیے سے بچائیں۔ تم اسے سنبھالنا کہتے ہو؟ سنبھالا ہی ہے نا، یہ دیکھو ہم نے 16-17 مہینے حکومت چلائی نہیں۔ وہ حکومت چلائی ہے، تم نے اپنی تجوریاں اور اپنا پیٹ بھرا ہے۔ تجوری بتائیں کون سی بھری ہے؟ میرے کپڑے صاف ستھرے، کہیں بھرے ہوئے کیچڑ لگا ہوا ہے؟ بتائیں ذرا، کوئی چائے کا نشان ہو، کوئی جرم کا نشان ہو، کوئی خون کے دھبے ہوں، کوئی ایسی پرابلم ہو، بتائیں، میرے کپڑے صاف ستھرے نہیں؟ ویسے ڈار صاحب، جتنی ڈٹھائی آپ کے چہرے پر ہے، جتنی ڈٹھائی آپ کے کردار پر ہے، اللہ پاک کی طرف سے پھٹکار پڑی ہے، لیکن آپ اپنی اس ڈٹھائی سے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، پھر دوبارہ لوٹنے آئے۔ اس وقت تو تم نے عوام کا وہ دیوالیہ نکالا ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کے پیٹ ہے کہ وہ بھرتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، بغیر مرضی۔ بالکل، اس میں کوئی شک تو نہیں۔ یہ لعنتیں، یہ بے شرمی، یہ جو بھی الزامات ہیں اللہ کی طرف سے آئے نا، میں اس کا صبر اور شکر کرتا ہوں الحمدللہ۔ اور بتائیں، ایسے بڑے یار کو پتہ نہیں بھائی اللہ کی کون طرف سی سے، آپ کی مخلوق طرف سے کے تو آپ نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے، لیکن کس مخلوق سے آپ کو کوئی اثر نہیں ہے، ہوتا؟ اسی مخلوق سے، یہ جو ہماری قوم ہے پاکستانی، اسی قوم، وہ کہتے ہیں نا جیسی عوام ہو ویسے حکمران۔ آئی ایم ایف سے جو 3 ارب ڈالر روپے آپ منتیں تلے کر کے پوری دنیا کی سفارشیں کرا کے لائے تھے، وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں آپ بتائیں نا، کہاں ہیں؟ آپ بتاؤ نا، لے کے آئے ہو 3 ارب ڈالر، وہ کہاں ہے آئی ایم ایف والے؟ میرے اکاؤنٹ میں عوام پہ خرچ کیے۔
सड़कों वो पे कहाँ खर्च कर दिया आवाम से? तो आपने बिजली गैस पेट्रोल महंगा करके 2 से 3 गुना महंगा करके आपने उनकी खाल उतार दी है। वो 3 अरब डॉलर का आप हिसाब दे सकते हैं कि वो कहाँ गए? 3 अरब डॉलर की क्या औकात है? क्या औकात है 3 अरब डॉलर की? एक अरब डॉलर के लिए सिस्कियां लेते रहे कि कोई हमें दे दे, आपको किसी ने नहीं दिया। शुक्र अदा करें IMF ने आपको डिफॉल्ट से बचा जितनी लिया। हुकूमतें ये गुजरी हैं, ये 3 अरब डॉलर रुपए के तो शेख रशीद साहब सिंगार पी गए होंगे। आप हमसे 3 अरब डॉलर का हिसाब पूछ रहे हैं? है कहाँ? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, हैं कहाँ? मुझे भी नहीं पता कहाँ है। या मियाँ साहब को पता होगा। मियाँ साहब तो लंदन बैठे हैं। तो उन्होंने भिजवाए थे ना वहाँ से। अच्छा, उन्होंने भिजवाए थे, हमने खर्च कर दिए। खर्च कहाँ किए, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये उनसे पूछो, मैं कल्ला थोड़ी हूँ। 552 सीटें होती हैं असेंबली हाल की। तकसीम करके आपस में। ऐसे मैंने कहा खर्च करो अपने अपने इलाकों में, लाइटें लगवाओ, नालियाँ बनवाओ। अच्छा ये बताओ डॉक्टर साहब कि आपने सिनेमा हॉल और जो शोबिज़ इंडस्ट्री है उस पर तो आपने टैक्स की छूट दे दी और बल्कि करोड़ रुपए के फ़ंड दे दिए उनकी डेवलपमेंट के लिए। मसाजिद पर, मदारिस पर आपने टैक्स लगा दिया। ये कहाँ की अक्लमंदी है? वो इसलिए लगाए हैं कि लोग अब जाने लग गए हैं मस्जिदों में, मदरसों में, दीन की तालीमें हासिल करते हैं, बच्चों को शऊर देते हैं, मुल्क पाकिस्तान का मतलब बताते हैं, इसलिए वहाँ टैक्सेस लगाए हैं। सिनेमा घरों में और थिएटरों में अब लोग नहीं जाते। मैंने कहा ये बेचारे भूखे मर रहे हैं, फ़नकार भी भूखे मर रहे हैं, प्रोड्यूसर भी भूखे मर रहे हैं, और जो सिनेमा मालकान हैं वो भी भूखे मर रहे हैं। मैंने कहा इनको माफ़ ताकि ये पैसे कम होंगे तो ये इनका कारोबार बेहतर होगा। अच्छा, इस वजह से यानी कि जिस तरह पब्लिक का रुझान होगा वहाँ आप उनकी खाल उतारने पहुँच जाएंगे। खाल नहीं उतारते वो, उनके अपने। आप चाहते हैं कि लोग मसाजिद में नमाज और इबादत के लिए ना जाएं, आपके टैक्स के और डर की वजह से वो घर बैठे रहें? नहीं, जाना चाहिए, अल्लाह का जिक्र तो करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान, अल्लाह का जिक्र करने जाते हैं, आप टैक्स लगा देते हो। उन पे थोड़ी लगाते हैं जो पढ़ने, मतलब नमाज तो पढ़ने। मस्जिद को जो टैक्स लगाए हैं उनके मसाजिद और मदारिस पे लगाए हैं, वो पे तो नमाजियों ने करने हैं ना, वो मस्जिद की दीवारों ने तो पे नहीं करने। यासीन साहब, हमारी तो ये अब 15-16 महीने की हुकूमत थी ना, अरसे दराज से आपके मस्जिद के बिल में टेलीविज़न का बिल आता है? कभी गौर करना। जी बिल्कुल रेडियो का आता बिल है। आता है? जी बिल्कुल, अब रेडियो शुरू हो गया, टीवी का मस्जिद के बिल में टीवी का बिल आता है। इसलिए आता है कि ये पे कर देंगे। वैसे मांगने जाएंगे तो आपको वासे का बिल नहीं मिलेगा, घर वालों से सुई गैस का बिल नहीं मिलेगा, बिजली का बिल अगले मीटर कटवा लेते भी, जाने दो। इसलिए हम इस बिजली के बिल में और टैक्सेस लग। आप एक साइकिल पर आए थे, मियाँ साहब की फैक्ट्री के मामूली से मुंशी थे। आज दुबई में आपके बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, बड़े प्लाजे हैं। दुबई में आपने सारी इन्वेस्टमेंट की है, इंग्लैंड में की है। इतना पैसा कमाया आपने, कहाँ से कमाया आपने? फार्मूला ही बता दो यार हमें। उस टाइम चौधरी बिरादरान का इंतखाबी निशान था साइकिल। अच्छा, जब हम इलेक्शन लड़े थे तो उस टाइम वो जो थी मुस्लिम लीग काफ जो थी, वो उनका इंतखाबी निशान था साइकिल। ठीक है, ठीक है ना, इसलिए हम साइकिल पर आए थे। अल्लाह ने हमें तरक्की दी, नवाजा, दौलत से भी नवाजा, शोहरत से भी नवाजा। हम कई बार हुकूमती सतह पर आला ओहदे पर रहे हम, तो फिर हमने साइकिल चेंज कर दी। ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है मियाँ साहब के साथ अटैच हुए, उनका आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, हत्ता कि उनके समधी बन गए, उनसे रिश्ता तक आपने ले लिया। वो गिद्दड़ सिंगी क्या है? एक साइकिल सवार बंदा मियाँ जैसी फैमिली का समधी बन गया है, वो गिद्दड़ सिंगी हमें बता दो। मी उस वक्त भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं यासीन साहब, और कोई कन्वेंस थी नहीं। अगर उस दौर में साइकिल थी तो जिस बंदे के पास साइकिल होती थी लोग उसको उठ कर सलाम करते थे कि भाई इसने 350 की साइकिल ली और ज़रा चेक करो ये। अच्छा, ये बिजली महंगी करने का जो फार्मूला और पेट्रोल वाला फार्मूला है, ये इसका असल मकसद क्या है कि पेट्रोल आपको मिलता है 100 और 16 रुपये लीटर, आप बेच रहे हो उसको 100 और 92 रुपये 91 रुपये लीटर। फी लीटर आप 80 70 75 से 80 रुपये आप कमा रहे हो। आवाम पर टैक्सों का बोझ लाद के उनकी खाल उतार रहे हो। ये कहाँ की मईशत है? मईशत का मतलब है आवाम को रिलीफ दें और अपनी मईशत को तरक्की दें। आपने क्या किया? ये जनाब, एक तो आप बोल रहे हैं इस वक्त 292 रुपये का है लीटर। जी बिल्कुल, पेट्रोल। हम इतने पैसे नहीं बचा रहे। गुजारिश ये है कि ऑडियंस के पास, आवाम के पास बड़ा पैसा है। आप कहते हैं हमारा गरीब मुल्क है। हाँ बिल्कुल, आप गरीब मुल्क है। किसी इशारे पर रुक जाएं, जी
500 गाड़ी यूँ खड़ी हो जाएगी, 500 यूँ खड़ी हो जाएगी, 500 यूँ खड़ी हो जाएगी, 500 यूँ खड़ी होगी। वो गाड़ी एक आज लेने गए आपको मेहरान भी 8.5 लाख रुपए की होगी। अच्छा, आप चाहते हैं अवाम गाड़ियां घर खड़ी कर दे या बेच दे, आप इस वजह से उनको तंग कर रहे हैं पेट्रोल दीगर टैक्सेस की मद में। जो गाड़ी हमारे हमसाया मुल्क में 3 लाख की और 3.5 लाख की मिलती है, हमारे मुल्क में 24 लाख की गाड़ी है जी। आप चाहते हैं कि अवाम गाड़ी सवार ही ना हो, वही खोता रेडी और पैदल और बसों पे, लोकल बसों पे सफ़र करें। केले ले आए ना, केले बनाना आप ले आएँ, उसको 2 दिन रेडी पे रख दें, काला हो जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, नहीं बिकेगा, परेशानी होगी ना। पेट्रोल ना इस्तेमाल करें, पड़ा रहे, खुद ब खुद इसका रेट कम हो जाएगा। ये हमारी थ्योरी है। वैसे मियाँ साहब एक बात बताएं, गवर्नमेंट ख़त्म होगी, आपने चार्ज दे दिया निगरान हुकूमत को और आपने एक 24 घंटे के अंदर मियाँ, आप, उसके मियाँ का बेटे, उनकी औलाद, आप मुल्क से फ़रार हो गए। क्या आपको एतमाद नहीं है, यकीन नहीं है कि यार इस मुल्क में हमने रहना चाहिए, मज़ीद आगे इलेक्शन? तो आप तो ऐसे गए जैसे गधे के सर से सींग, एक रात भी नहीं आप पाकिस्तान में ठहर सके। देखिए जी, हालात नसातगार हैं, इंतशार फैलाने वाले बहुत लोग हैं, धरने देने वाले बहुत लोग हैं। अभी 9 मई वाला आपको वाक़या याद ही होगा। जी बिल्कुल। आप चाहते हैं भी हमारे मुल्क में लाठीचार्ज हो, झगड़ा फसाद हो और एक दूसरे को लोग फैर मार दें। अगर हम गए भी हैं तो चोरी थोड़ी भागे हैं भाई, एयर गए होंगे ना, एयरपोर्ट से बोर्डिंग कराई होगी और लॉन में बैठे होंगे, जहाज़ अपने टाइम से उड़ा होगा, या मतलब है ना ये सारा सिस्टम। चोर तो वो होते हैं जो मुँह छुपा के बुम करके निकल जाए। वैसे जो तुमने गिद्दड़ सिंगी सिखाई थी ना इस दफ़ा इदारों को, और इदारों ने जो एज दिया, जितना माल तुमने इन 16 महीनों में समेटा है, मेरा ख्याल है पिछले कुछ 16 सालों में नहीं समेटा होगा। उसकी वजह से अब आवाम तो होगी जलील, दिवालिया निकल गया है। आप अपना काम किया, हाथ झाड़े, वो जो मियाँ साहब जाते हुए ऐसे कर गए हैं ना कि जनाब मेरा काम ख़त्म, और वो गए हाथ साफ कर गए। वो तुम तो कपड़े बेचकर आवाम को रोटी देने आए थे, आवाम के कपड़े बिकवा के भी रोटी नहीं पूरी हो पा रही उनसे। जनाब कपड़े बेचने से कहाँ रोटी मिलती? ये लंडे के जो कपड़े मिलते हैं 160 रुपये का सूट मिल जाता है लंडे वाला। सच सच बताएं, आपके असासे जो हैं इस वक्त बैरून ममालिक कितने अरबों डॉलर के होंगे? सही बतानी है यासीन साहब, ये बड़ा दर्दनाक सवाल। झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, गलत। मैं बोलूँगा नहीं तो झूठ क्यों बोलूँगा? जी सच बताएं। मैं इस बात पे बोलूँगा नहीं तो फिर झूठ क्यों बोलूँगा? ये मैं बताऊँगा, अगली हुकूमत भी हमारी है। और तुम्हें वोट किसने देने हैं भाई? आओ तो सही पाकिस्तान में। आ रहे हैं हम, कैसे साहब भी आ रहे हैं अवाम अगले ने- मंथ पहले वीकली वो यहाँ पाकिस्तान हो गए और कंपेन करेंगे इस दफ़ा अवाम ने इलेक्शन। जूते मार मार के ये जो 4 बाल रह गए हैं ये भी उतार। ये दौलत आने की निशानी होती है। ये यहाँ से जब उड़ जाएंगे ना तो समझ लो दौलत मेरे आगे पीछे होगी और मैं प्रोटोकॉल। वैसे जिस तरह तुम्हें पहले हुकूमत दी थी, क्या इसी तरह ही आइंदा हुकूमत लेने आओगे? जी। वोट तो तुम्हें मिलता कोई नहीं। चलो आप भी यहीं जिंदा और मैं भी यहीं जिंदा। पहले तो हम इलेक्शन होने नहीं देंगे। इंटरनेशनल मीडिया पे क्यों नहीं जाते? जाता हूँ। वो तो आपको बुलाते हैं, आप एक दफ़ा जो इंटरव्यू हुआ वो आपका वो उन्होंने दुगत बनाई, वो बनाई, उसके बाद आप जाते ही नहीं हो इंटरनेशनल मैं मीडिया पे। जाता हूँ, आपको क्या पता? हमारी नज़रों से वो जले, हमें तो कभी स्क्रीन पर नज़र नहीं आया किसी और चैनल में आपके यहाँ बैठे। केबल नहीं लगी होगी? नहीं केबल नहीं तो सोशल मीडिया और दीगर चीज़ें भी तो है ना। बारा छोड़ें यासीन साहब, नेक्स्ट हुकूमत में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये चैनल चलाते कैसे। यानी कि नेक्स्ट हुकूमत में मुसल्लत होने के लिए तुम लोगों ने यस तैयारी यस की हुई है। यस 110%। नाजरीन, अगर नेक्स्ट हुकूमत में भी इसी तरह की गवर्नमेंट और ये लोग आते हैं तो हम जैसे गरीबों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। इसके साथ ही आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है।
ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔